सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep. Creativity is the power to connect the seemingly unconnected. Hi friends, I'm Priyal Kumar. And I'm Saiba Sangroya. Welcome back to your favorite show, Just Junior. Just junior, Creativity का मतलब है ऐसे बातें सोचने की क्षमता जो बहुत नई हो और पहले किसी ने ना सोची हो, जैसे हमारा जस्ट जूनियर है फ्रेंड्स। Exactly साहिबा, जैसे हमारे इस शो में कहानियां हैं, फिट रहने के लिए एरोबिक्स है एंड इनोवेशन है, और तो और हमारे जूनियर फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स का सलूशन है। बिल्कुल दी, तो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको वो सेगमेंट कितना पसंद है, क्योंकि ना जाने आप क्या क्या करती है फिट रहने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है साहिबा, आई एम प्रिटी श्योर तुम भी बहुत एक्सरसाइज करती हो एंड सो डू आवर जूनियर फ्रेंड्स। ओके दी, मैं समझ गई। तो चलो चलते हैं अपने फिटनेस वर्ल्ड में और बुला लेते हैं अन्विता और अफरीन को। अरे तुम तो श्वेता दी को ही भूल गई। अरे दी, मैं तो भूल ही गई थी। Welcome again everyone. I, Shweta Srivastava, your fitness expert, brings you back again some new exercises. Michael Jordan once said, some people want it happen. Some people wish it would happen. Others make it happen. And I am 100% sure that you are ones who will make it happen. So let's begin with warm-up, which is skipping on the spot followed by twisting. Today we'll do cardio. Our first exercise today is scissor punch. This is a very good exercise for your legs and arm strengthening. Second exercise which we will do today is squat jacks. This works very well on your glutes. Third exercise which we will do today is butt kicks. This works on your front and back of thighs. Fourth exercise which we will do today is forward heel touch. This works on your core muscles and stability. As I always say, please do all these exercises in sets, minimum of 3 to get the best results. Let's cool down.
Thank you for staying with us and working out with us. See you all next week. Till then, be active, be awesome. Jai Junior, देखा आपने एरोबिक्स, फील द एनर्जी. थैंक यू सो मच श्वेता दी, आफरीन एंड अन्विता. Thank you so much Afreen, Anvita और श्वेता दी. Work your body and stay fit. Jai Junior. तो आज का टॉपिक है आर्ट एंड क्रिएटिविटी. सो आर्ट इज अ डाइवर्स कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस इन वेज वी कैन सी और हियर. तो इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए बुला लेते हैं हमारे गेस्ट काजी एम रकीब जी को, who is a well-known art director and critic and has been practicing for 35 years. He owns an art gallery and is a visiting faculty member in a number of universities. Welcome, sir. Welcome to our show, sir. Thank you. Thank you. Please have a seat. और साथ ही बुला लेते हैं हमारी जूनियर गेस्ट मान्या मैनी को, who is from Bharati Public School, Nirman Vihar. She's a well-accomplished artist who's won a number of awards for her school and she practices still life sketching professionally. Welcome, Manya. Welcome to our show, Manya. तो अपने शो को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म. तो जैसा कि आपने अभी क्लिप में देखा, उन्होंने कार्डबोर्ड का प्रयोग करके दिवाली डेकोरेशंस बनाई, पेंटिंग से टेक्सचर्ड पेंटिंग्स बनाई. तो आपको ये क्लिप कैसी लगी सर? नहीं, क्लिप बड़े इंटरेस्टिंग है. एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं और आप उनको लेकर के कोई कंपोजिशन या कुछ क्रिएटिविटी करते हैं. डेफिनेटली इट्स वेरी क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग आल्सो. Sir, I have a question for you. Okay. That what does creativity mean to you? Basically, first thing, what do you think? What's your feeling? Your emotions. That is first thing. First you think about to make something on paper or canvas, whatever medium you are using. Second thing, how you execute that thing. जो आपकी सोच है उसको कैसे execute करते हैं. That is second aspect. थर्ड एस्पेक्ट है वो आउटकम उसका क्या आता है, निकल के क्या बन के आता है. अगर वो बन के ऐसी चीज़ आती है थोड़ी डिफरेंट है, पहले ऐसे किसी ने नहीं की है, कुछ यूनिक उसके अंदर आइडिया है, एलिमेंट वही है लेकिन आपने इस तरह से अरेंज किया है तो वो डिफरेंट लगता है. तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी बेसिकली. फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारती पब्लिक स्कूल निर्माण विहार के कुछ स्टूडेंट्स, जिनके क्वेश्चंस आज हमारे एक्सपर्ट्स आंसर करेंगे. तो ले लेते हैं उनका पहला क्वेश्चन. My question is that how innovation and creativity are related to each other in various fields such as art, science and business. इनोवेशन का मतलब ही क्रिएटिविटी है. अगर आप कुछ चीज़ इनोवेट करेंगे तो दैट विल बिकम ए क्रिएटिविटी. So that is a simple relation between innovation and creativity. Can we please have the next question? So I was just wondering how has technology influenced by creation and presentation of installation art in the contemporary times? It's very simple. Every time in photography and design, computers आ गए हैं,
डिफरेंट डिजिटल कैमराज आ गए हैं, एडिटिंग यूनिट्स, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली सपोर्टिंग आर्ट, बट माइंड शुड बी देयर। क्रिएटिविटी में माइंड होना, एक सोच होना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट आपको एक सपोर्ट करता है, स्पीड अप देता है, एक टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करता है आपके आर्ट वर्क में, लेकिन आपको सोचना, आपको अगर आप क्रिएटिव हैं देन यू कैन यूज ए इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी वट एवर यू वांट टू डू। तो इतने लंबे क्वेश्चन के बाद क्यों ना एक और क्वेश्चन ले लें। एब्सोल्यूट। सर, जैसे कि आप एक आर्टिस्ट के साथ एक क्रिटिक भी हैं, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे मैं किसी आर्ट शो में जाता हूँ तो सबसे पहले मेरी निगाह पड़ती है उसकी बेसिक एलिमेंट ठीक हैं या नहीं। जैसे हमारी जैसे ग्रामर होती है लैंग्वेज की, ऐसी आर्ट की भी ग्रामर है। तो आपको ग्रामर जानने के लिए आपको ड्राइंग आना चाहिए पहले। तो आपकी ड्राइंग अगर ठीक है तो हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि इसको ड्राइंग आता है, उसके बाद वो कैसे उसको कंपोज करता है, उसमें ह्यूमन फिल्म बनाता है, लैंडस्केप बनाता है, व्हाटएवर जो या पोर्ट्रेट बनाता है। तो ये सब चीज़ें हम उसको पहले, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हमारा उसकी ड्राइंग है, उसके बाद उसकी कलर स्कीम है, फिर उसके बाद वो कैसे कंपोज होता है, फिर कितना डिफरेंट होता है और कितनी उसमें कमियाँ रह जाती हैं। तो बेसिकली मैं एज एन आर्ट क्रिटिक मैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन करता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करता। क्रिटिकल अप्रिसिएशन का मतलब है कि आप क्रिटिकली उसको एक्सप्लेन करें कि अगर आपको कुछ आर्ट वर्क में चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो मान्या, आई हैव सीन कि आपके पास बहुत सारी ट्रॉफीज़ है और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं। So I just want to ask you that how did you get inspired to do all these art and drawings? Basically, since my childhood only, I was really attracted to colors. I was just inclined towards art, and I was just used to do it as an hobby. I just used to spend hours and hours doing this. Then I slowly started participating in competitions, and I used to have a lot of fun. And then I just, participated in a lot, and I used to win prizes. I used to get really happy. So yeah, that's how it all happened. So Manya, I've seen you've won a couple of awards in craft as well. So what basically got you into doing craft? I would say some school projects. Like we used to just get some school projects from best out of waste and everything. Then I just started really enjoying those projects, and then I just used to try out different mediums. So I just thought of going into crafting as well. I started up clay works and then best out of waste, and it was really fun. So I just went into the competitions, and I was really happy with all of the artworks I made. I got some failures, but after all I just won some prizes and I was happy. So sir, as we can see, she has a passion for art. So can she pursue it as a profession? डेफिनेटली अभी तो सब कुछ आर्ट ही आर्ट है। आप कहीं भी जाते हैं तो फैशन के कपड़े पहनते हैं। अब इवन आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो अच्छे बैग्स में आता है। इवन सामान का डिस्प्ले, इवन टीवी डिज़ाइन, हर चीज़ में आर्ट है। बिना आर्ट के तो कुछ है नहीं। पहले कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है, फिर टेक्निकल इंजीनियर्स उसके सपोर्ट में डालते हैं कि ये एलिमेंट इसमें चाहिए। तो कोई भी चीज़ बनेगी तो पहले उसमें डिज़ाइनर यानी कि आर्टिस्ट की ज़रूरत है। तो ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये अच्छा कर रही हैं तो इनको आगे चल के दिल्ली में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, BFA, उसके बाद MFA करें, अप्लाइड आर्ट। अगर डिज़ाइनर बनना है तो अप्लाइड आर्ट में जाएं, अगर पेंटर बनना है तो पेंटिंग में जाएं, और स्कल्प्टर बनना है तो स्कल्पचर में जाएं, और इलस्ट्रेशन में भी आजकल BFA होता है, एनिमेशन में BFA होता है, और अभी मतलब जो कार्टून कैरिकेचर भी लोग एक फील्ड बन गया है। तो बहुत सारे फील्ड है, वाइड फील्ड्स हैं। मतलब आर्ट था भी, लेकिन ऑब्जर्वेशन लोगों को अब पता लगी है कि अब आर्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। Can we please have the next question? All I want to know is your views on how technology has influenced or changed the way the art is created or experienced from digital art to virtual reality exhibitions. Definitely in art field is taking place, the technology taking place. Even digital art is very interesting, but in India still now people don't consider digital arts so expressive, whatever. They consider it's like in a computer things you are doing. Price wise it's not very high. So we, at least in India, we have a scope for more than 25 years we need to develop that level to become a digital artist or digital painting or digital, even recently in India also 3D printers came. That is also very interesting. अगर आपको पोर्ट्रेट स्कल्पचर में बनाना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी को कैरेक्टर मिलाना। तो कंप्यूटर इज़ वेरी सिंपल, जस्ट टू फीड 4 साइड फोटोग्राफ्स, फ्रंट, बैक एंड राइट एंड लेफ्ट एंड टॉप लेवल। अब वो उसके अंदर फीड कर दिए तो आपको स्कल्पचर बन के निकल आएगा। लेकिन अभी उसमें एक लिमिटेशन है,
तो अभी डिजिटल आर्ट का बहुत स्कोप है, लेकिन अभी लिमिटेशन है। तो उसके अंदर कितना क्रिएटिव कर सकते हैं लोग, ये सोच रहे हैं कि फ़ोटो वोटो मर्ज करके वो आर्ट बन जाता है। उसमें भी एक थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई नई चीज़ लाएंगे तभी तो बनेगा। वो तो एक टेक्निक है, आपने फ़ोटो कटआउट कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, तो ऑलरेडी मतलब लोग मैनुअली भी कर रहे थे। तो डिजिटल आर्ट का यूज़ कितना कर सकते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन अभी हमारे इंडिया में डिजिटल आर्ट इतनी डेवलप नहीं हुई है कि उसको हमें हाई प्राइसिंग मिल सके। तो ये तो फ्यूचर है, डेफिनेटली आगे चलेगा तो टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें काम आएगी। Can we please have the next question? My question to you is that how do online platforms promote creativity? Definitely after this corona issue, so everything was online. Even I was working online. It's very good idea to work. I'm still working some project on online. But frankly, my personal opinion, online is not giving the real impact of an art. आप इतना बड़ा पेंटिंग 6 फीट बाय 10 फीट का पेंटिंग ऑनलाइन एक छोटे से मॉनिटर यानी टैब पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं या मोबाइल पे देखते हैं, तो जो उसकी जो डिटेल्स हैं, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, यू कांट सी ऑन द ऑनलाइन फॉर स्पेशली विजुअल आर्ट। मे बी परफॉर्मिंग आर्ट इट कैन हैपन, इट कैन वर्क, बट विजुअल आर्ट यू नीड टू टच एंड फील, लुक एंड फील। जब तक नहीं होगा तो आपको लगेगा नहीं कि मैं कुछ देख रहा हूँ। ऑनलाइन लोग प्रैक्टिस करते हैं, आजकल आर्ट सीख रहे हैं, इंस्टीट्यूट खुले हैं ऑनलाइन, लेकिन स्टिल दे वांट फिजिकल अपीयरेंस। जो मैं फिजिकल जो ड्राइंग करते हैं ना, वो ऑनलाइन में आप समझ नहीं सकते, क्योंकि वो सारा कंपोजिशन को रिड्यूस करके एक मिनिएचर बना देता है। तो वो इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा। अगर आप ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प टू यू। Sir, I have another question for you. That what is the difference between caricature and cartoon? Basically, it's very good question you are asking in front of the students. People consider cartoon means टेढ़ा मेढ़ा drawing करना is cartoon. It's not cartoon. Cartoon means you have doing some drawing or sketching in certain manner and giving some humor. Humor is more important. In cartoon, 50% humor, 50% drawing. Both should be there. If there is no humor, there is no cartoon. टेढ़ा मेढ़ा बनाना is not a cartoon. Humor should be there. That is a cartoon. And caricature, you are doing drawing and distorting in a certain manner. Suppose you consider somebody has a thick nose, मोटी नाक है उसकी, तो उसको हाईलाइट करना है, तो उसका कैरेक्टर रिजेंबलेंस रहना चाहिए उसके अंदर। मतलब वो आदमी दिखना चाहिए कि अमिताभ बच्चन है या लालू यादव है, मतलब वो आदमी दिखना चाहिए, लेकिन डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो। और डिस्टॉर्शन का मतलब ये नहीं कि आप टेढ़ा मेढ़ा कर दें, उसमें भी उसमें डिस्टॉर्शन एक सर्टेन एंगल में होता है। आपने कभी गांव के मेले में देखा होगा कि कुछ मिरर होते हैं लगे हुए, डिफरेंट तरह के उनके फोकल लेंथ होती हैं, तो उसमें टेढ़े मेढ़े नज़र आते हैं, लोग हंसते हैं उसको देख। लाफिंग मिरर के नाम से पहले होता है, अभी पता नहीं होता नहीं होगा। तो वो बेसिकली वही थॉट उसको देता है, वो बेसिक फंडा है कि आपकी पूरी बॉडी को एक सर्टेन स्टाइल में डिस्टॉर्ट कर दिया, बट स्टिल यू लुक द सेम। समबडी कैन आइडेंटिफाइड योर कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड कैरिकेचर। तो कैरिकेचर का मतलब एक सर्टेन स्टाइल में अपने डिस्टॉर्ट किया उस ड्राइंग को, अपने स्केचिंग को, लेकिन उसमें वो मौजूद रहा जो आप हैं, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है। और कार्टून्स में क्या है कि आपने इस तरह से ड्राइंग किया, सब कार्टूनिस्ट का अलग स्टाइल है। सुधीर का अलग है, आर के लक्ष्मण का अलग है, साबू का अलग है, बहुत सारे कार्टूनिस्ट इंडिया के टॉप कार्टूनिस्ट, लेकिन वो सब में ह्यूमर, एक सटायर, एक कमेंट होता है। तो कमेंट होना ज़रूरी है। मतलब इतना एक ज़माना था कि कार्टून फ्रंट पे आता था, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, लोग पहले कार्टून देखते थे, बाद में अखबार पढ़ते थे। तो वो लेटेस्ट जो हैपनिंग हो रही है दुनिया में, उसके ऊपर एक सटायर, उसके ऊपर कमेंट, ये दैट इज़ अ कार्टून। So Manya, like Sir said, cartoons and caricature, are you into drawing all this? Yes. I'll just get inspiration from the real life characters, like you can say, as Sir said, like actors and everything. So I used to just take some inspiration and just taking like some features, not like exactly copying those, but just taking some features. I used to just create my own characters, and I just try to do these. Thank you so much, sir, for joining us and shedding so much light on this. Thank you inviting me in such a creative program. Thank you so much, Manya, for coming to our show and inspiring everybody with your words. Thank you so much. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हम किसी भी एज में इतने सारे तरीकों से अपना आर्ट एंड क्राफ्ट एनहांस कर सकते हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कैरिकेचर, कार्टून्स एंड पेंटिंग्स एंड मेनी मोर। जिस तरह हम अपने शो जस्ट जूनियर में आपके प्रॉब्लम्स का नया सलूशन लाते हैं और क्रिएटिव तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। दी, क्या आपको पता है आजकल पीकू बहुत बिजी रहती है?
लगता है आज हमें खुद जाना पड़ेगा उसके पास। साहिबा, क्या तुम्हें पता है हालांकि पीकू को क्या बिजी रख रहा है? अरे दी, पीकू के माइंड में तो क्रिएटिविटी और आर्ट का भूत सवार है। अच्छा, ऐसी बात है, तो हम यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलो चलें पीकू के पास और देखते हैं आज वो हमें कौन सी स्टोरी सुनाएगी। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अरे पीकू, तुम क्या ड्रॉ कर रही हो? वाओ, इसमें तो नदी और माउंटेन्स भी है। कितनी प्यारी पेंटिंग है ये तो। और ये देखो साहिबा, ये कैसी लगी? पीकू, तुम इस पेंटिंग में हमें वेस्ट वाटर को कैसे यूज करना चाहिए ये सिखा रही हो, है ना? पीकू, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। हमारे को वाटर रिसाइकिल करने के तरीके पेंटिंग के थ्रू सिखा रही हो। यस प्रियल्दी, हमें कभी भी किसी भी तरीके से पानी को बर्बाद होने से रोकना होगा। बिल्कुल पीकू, बचेगा जल तभी तो सुरक्षित रहेगा कल। बिल्कुल ठीक। समीर, तुम्हारी छुट्टियां कैसी रही? अच्छी थी। इस बार मैं दिल्ली में कई जगह घूमा और वहाँ मैंने एक बड़ी बावली भी देखी। बावली? मतलब क्या होता है? क्या तुम बावली को नहीं जानते? अरे रिया, तुम भी मेरी तरह भुलक्कड़ हो ना। याद करो कि कुछ दिन पहले टीचर ने हमें इस पाठ के बारे में भी पढ़ाया था। नहीं, याद नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह भूल गया था, पर पापा ने मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से बताया तो मुझे काफी कुछ पता चला। बावली मतलब सीढ़ीदार कुआं जहां पानी को इकट्ठा कर कर रखा जाता था। क्या पहले के जमाने में पानी को संरक्षण करने के लिए बनाई जाती थी? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप? छुट्टियों में क्या किया? कुछ नई जानकारी ली या नहीं? यस मैम, मैं जानता हूँ कि पुराने जमाने में पानी को कैसे बावली में जमा किया जाता था। अच्छा, क्या सीखा? सब बच्चों को बताओ। आपको पता है मैम, मैं अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में भी घूमने गया था। पापा ने मुझे वहाँ की बावली दिखाई जो 700 से अधिक साल पुरानी थी। अच्छा, और क्या बताया आपके पापा ने? बेटा देखो, ये बावली है। इसके बारे में आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें ये बावली दिखाता हूँ। देखो बेटा, पहले ज़माने में ऐसी बावली के ज़रिए ही पानी को संजोकर रखा जाता था। इस बावली का पानी बड़े काम आता था। इसमें खूब सारा पानी होता था। वाह पापा, ये तो बहुत बड़ी है, स्विमिंग पूल से भी। पापा, ये पानी किस काम में आता था? सभी काम आता था, लेकिन जब खूब गर्मी पड़ती और खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता, तब बावली में जमा पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। पानी मिलने पर फसलें खूब लहलहाती थीं, जिससे किसान खुशहाल होते थे। पापा, ये इसमें इतनी सारी सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती थी? ये सीढ़ियाँ इसलिए बनाई जाती थीं ताकि जब पानी का लेवल कम हो जाए
तब सीढ़ियों से चलकर इस पानी तक पहुंचा जा सके। इस बावली को 14वीं शताब्दी में मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने बनवाया था। वाओ समीर, तुम्हें कितनी सारी जानकारी मिली। क्या सच में ये बावली स्विमिंग पूल की तरह होती है? नहीं, बल्कि उससे काफी बड़ी और चौड़ी होती है। पापा ने बताया था कि इसकी लंबाई 37 मीटर जबकि इसकी चौड़ाई 16 मीटर है। इस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की सहायता ली जाती थी। वाह समीर, बहुत खूब। मैडम, समीर के साथ साथ सब बच्चों को बावली के बारे में पता चल जाएगा। चलो, मैं आज आपको बावली के बारे में और बताती हूँ। बावली को पानी जमा करने के लिए बनाया जाता था। ऐसा तो ये हमेशा ही पानी के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन सूखा पड़ने पर ये बहुत काम आती थी। इसके अलावा इसका पानी सिंचाई के लिए भी खूब इस्तेमाल होता था। इतनी पुरानी बावली में जमा पानी खराब नहीं होता? इसका पानी इस्तेमाल लायक बना रहे, इसके लिए बावली की वक्त वक्त पर सफाई की जाती थी। ये बावली सिर्फ दिल्ली में ही है? नहीं नहीं, ये बावलियाँ तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मिलती हैं। ये जानकारी हम सब के लिए है। देखो दोस्तों, इसका मतलब आज भी इन बावलियों के पानी को सही से रखा जाए तो पानी की किल्लत से परेशान लोगों को पानी मुहैया कराया जा सकता है। शाबाश बच्चों, और पी को सही समझे। इकट्ठा करो पानी को बचाने का ज्ञान, ताकि ना रहे प्यासा कोई जीव और इंसान। दी, पीकू ने अपने पेंटिंग के थ्रू वेस्ट पानी को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है बहुत अच्छे से समझाया है ना? एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच पीकू, आप हर बार आके हमारे को इतना इंस्पायर करती हो। तो दी, चलो ले लेते हैं इस वीक का ईमेल। तो आज का ईमेल है अपूरी सुरेश कुमार जी की एंड राधिका जी की तरफ से, जो कि दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। वो लिखते हैं, हाय जस्ट जूनियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई होप इट्स द सेम विद यू. Your program, Just Junior, is simply beautiful and good. They play all age group programs for nursery to interschool and even high school graduates. I like the fact that you invite students from all age categories and schools, including private schools, government sectors, and semi-private schools. You provide opportunities to students, which is a great deal. Thank you so much for the lovely words. Thank you so much for the lovely email, sir and ma'am. तो आज के लिए बस इतना ही. We'll meet you on the same day at the same time next week only at your favorite show Just Junior. And feedback देने के लिए log in करें ddjustjunior@gmail.com पर. और हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करना मत भूलिएगा. Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye. Junior.